Hello friends, welcome to Diwane ESE and GATE, and this video is related to the solution of the test number 2 aptitude. So let's start the solution. The first question is, if A and B, A plus B means A is mother of B, A minus B is A is brother of B, and A percentage B means A is father of B, and A cross B means A is sister of B. So there are the notation, and those notation mean something, so I have underlined those meanings. Now we have to find what this term means. Okay, so let's do P minus M cross M plus N cross Q. Okay, so here minus term, where is the minus term? This is minus term means brother, so P is brother of M, right? Then M plus N, here where is the M plus N? Plus is the first term here. Okay, so mother, M is mother of N. Okay, and N cross P, where is cross? Here is cross, sister, N is sister, therefore N is sister of Q, therefore M is also mother of Q, and P is brother of M, therefore P is maternal uncle of Q. So here right answer is Q. यहाँ पर राइट आंसर सी भी हो सकता है, पी इज अंकल ऑफ क्यू, बट द मोर राइट आंसर इज डी, सो डी इज द राइट आंसर इन दिस सिनेरियो. ओके, now the second question, this is very easy question, we have to just solve it. Nothing else, 2 plus root 2 plus I can write as 2 minus root 2 minus 2, sorry, here minus root 2 upon 2 square minus root 2 square. When you solve it, you will get answer 2, right? So let's not waste time on this question. The third question is, 54 is to be divided into two parts such that sum of 10 times the first and 22 times the second is 780. The bigger part, they have asked you about the bigger part, so this is very easy question. And let's हम directly दो equation बनाएंगे, which is 54 equals to x plus y. X is one part, y is another part. Now the sum of 10 times the first part plus 22 times the y part is 780. This is equation number 1, this is equation number 2. When you solve these two equations, you will get one x equals to 34 and one is 20. Just solve it. Here you will say the bigger part is 34. Okay, so the right answer is B. The right answer is B. Okay, 34. Now let's go to the fourth question. What percentage of numbers from 1 to 70 have square that ends in digit 1? First let's understand something, okay, because this concept will help you anywhere. So what are the numbers? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So अगर कोई भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट, वी आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट डिजिट, इफ लास्ट डिजिट इज 0 1 2 3, then what will be the last digit of their square? Okay, like 21 33, so what will be the last digit of 21 square, 33 square? So if the last digit is 0, then the last digit of square is also 0. If it is 1, then 1, 2, then 4, 3, then 9, 14, then 6, 15, then 25, then 5, 16, then 6, 17, then 9, 18, 8 8 is 64, 4, 9, 18, 9 9 is 81, therefore 1. So we can see that when the last digit is 1 and the last digit of 9, then the last digit of square is 1. So from 1 to 70, how many such numbers are there? First one is 1, then 9, then 11, then 19, then 21, then I think 29, 31, 39, 41, 49, 51, 59, 61 and 69. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. So total 14 divided by 70, right? 70 यहाँ पर है, 70 is the total number, and we have to find the percentage, therefore into 100. So when you do this, you will get answer C. This is also very easy question, and also time required is less. Now these are 1 marks question, right? You know that from question 1 to 15, 1 marks. Okay, so now
question number 5 is 100 oranges are bought at the rate of 100 oranges are bought at the rate of rupees 350 and sold at rate of 48 per dozen. The percentage of profit or loss. So you have to find, very easy question. So यहाँ पर 100 orange है, that cost 350. Therefore one orange will cost 3.5 rupees, right? So यहाँ पर therefore one dozen will cost 3.5 into 12. So it will be something. Now the final is 1 dozen is sold at 48 rupees. Therefore profit, sorry. Therefore profit or loss equals to final price minus initial upon initial into 100. ये तो सबको ही पता है, everyone knows this. So final is 48. Previous one is I think this one our 3.5 into 12 upon 100. So what you will get, 3.5 into 12 is 42 and this, so 48 minus 42 upon 100. So the correct answer will be A. Okay, so just solve this question, very easy question. Now the question number 6. A fort had provision of food for 150 men for 45 days. After 10 days 25 men left the fort. The number of days for which the remaining food will last is. So this is a very, these type of question when work done and when you have to count the number of persons, like here 150 men for 45 days, 100 men for 650 days, something like that. So इसका एक बहुत easy question है कि अगर मान लीजिए सिर्फ एक ही बंदा खाए, यहाँ पर क्या है 150 मैन खा रहे हैं 45 डेज के लिए, अगर सिर्फ एक ही बंदा खाए फॉर वन पर्सन, सो कितने दिन के लिए चलेगा 150 इंटू 45 डेज, राइट? तो ये मैंने एक बंदे के लिए निकाल दिया. अब दिस इज हाउ मच, 150 इंटू 45 इज 6750. अब यहाँ पर बोला है here they have said that after 10 days, so means for first 10 days 150 men ने यूज़ किया है राशन, so 1500. After 25 men left, not 25 men left, so for 25 men left, so the remaining is 125 and they can eat for X days. So what is this? So very simple question. 10 you can equate, right? Plus 125 into X equals to 150 into 45. So the here answer will come, the value of X here is 42 days. So answer is C. 7, this is a very easy question. Okay, hardly it will take 10 seconds. Here you can see 4 minus 8, 16 minus 32, then 64. Here multiply by minus 2, here multiply by 2, here multiply by minus 2, here multiply by 2, so here multiply by minus 2. 64 minus B is the right answer. 8th question. This is also very good easy question. Two squares are there. इसका first is perimeter is 40, second perimeter is 32. So here side is 10 and A1, here side is A2 is 8, right? 8 4 is 32. So now find the perimeter of the we have to find the perimeter of the third square whose area is equal to the difference of the areas of two. Let's, third square is this one, A3. So A3 area square equals to A1 square minus A2 square. So 10 square minus 8 square is 36. Therefore A3 is 6. Now we have to find perimeter, remember that. So 4 into A3 is 24. So the answer is B. 9. Here this is a very easy question. First count 1 2 3 4 5 6. So these three sitting in a row. So row means we have 1 2 3 4 5 6. Okay, S and Z are in the center. So center is these two, so S and Z. These have two kind of combination, right? Z and S. A and P are at the ends. A can be here, sorry guys, and P can be here, or
P can be here and A can be here. So let's आगे पढ़ते हैं. A and P are at the center. R is sitting to the left of A. Now यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि लेफ्ट हम कैसे हैं. So हमें एक चीज़ माननी पड़ेगी कि लेट्स दे आर फेसिंग टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, टूवर्ड्स दिस एरो. तो अगर ये इस तरफ फेस कर रहा है एंड R इज सिटिंग टू द लेफ्ट, तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो A अगर इस पोजीशन पे है तो इसके लेफ्ट में, लेफ्ट इस साइड होगा तो कोई बैठ ही नहीं सकता है. सो दिस इज़ द राइट प्लेस, राइट. सो A हमने यहाँ पर बिठा दिया, P हमने यहाँ पर बिठा दिया. और जो एक और कंडीशन है A एंड P, S एंड Z, ये थोड़ा पहला वाला हमने रफ वर्क के लिए यूज़ किया. ये दो कंडीशन है. R इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ A, तो R यहाँ पर बैठ गया, तो X यहाँ पर बैठ गया. अब ये दो कंडीशन है, फर्स्ट सेकंड. पूछा क्या, हु इज़ द राइट ऑफ P? राइट ऑफ P इज़ X, सिंपल. सो आंसर इज B. थोड़ा ये मैं फर्स्ट टाइम ये यूज़ कर रहा हूँ PPT, सो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, ज़्यादा नहीं आ रही, पर सॉरी फॉर दैट. द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 91. तो सबसे पहले देखिए, ऐसे क्वेश्चन अगर करने हैं तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन से हैं, यही है सबसे लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर. चलिए इसको डिवाइड करते हैं. 99999 डिवाइडेड बाय 91. सो देखिए 99999 डिवाइडेड बाय, कैलकुलेटर से आप, कैलकुलेटर आप यूज़ कीजिए यहाँ पर, तो आपका एक कुछ आंसर डिवाइडेड बाय 91. सॉरी गाइज, here you will get something like 1098 into 81 upon 91, right. अगर आप लोग देखें तो 81 upon 91. ओके, अब यहाँ पर हम इसमें से माइनस कर देंगे. 99999 माइनस 81, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, एंड योर आंसर विल बी दिस वन. सॉरी 9999981, यहाँ पर 81999. आंसर इज बी. नाउ 11th, हाउ लॉन्ग विल अ बॉय टेक टू रन राउंड अ स्क्वायर फील्ड of side 35 meter, 35, so total distance is 35 into 4, right. if he runs at a rate of 9 किलोमीटर पर आवर. अब देखिए यहाँ पर स्पीड जो है वो दे रखा है 9 किलोमीटर पर आवर में, तो इसको सबसे, और जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 35 into 4 मीटर में. सो फर्स्ट जो हमारी स्पीड है उसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में. सो 9 into 5/18, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड. अब टाइम पूछा, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो 35 into 4 upon 10, 56. सही है ना. सॉरी, here it is 5/2, so 56 सेकेंड. ओके, 5/2 मीटर पर सेकेंड. सो यहाँ पर आंसर जो है 56 सेकेंड्स है. थर्ड वन इज, 12th वन इज, अ पुलिसमैन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ, पुलिसमैन की स्पीड क्या है, मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ, 10 किलोमीटर पर आवर. बिहाइंड अ थीफ हु इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर. थीफ इज डिनोटेड बाय 8 T, सो 8 किलोमीटर पर आवर. एंड 100 मीटर अहेड ऑफ द पुलिसमैन. सो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, 100 मीटर. हाउ मच टाइम पुलिसमैन विल टेक टू कैच द थीफ. देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल है, यहाँ पर चोर पुलिस की कहानी है. सो चोर आगे है, पुलिस पीछे है एज ऑलवेज, एंड इनके बीच में जो डिस्टेंस है 100 मीटर. अगर पुलिस आगे होता, चोर पीछे होता, तो पकड़ने की जरूरत क्या थी, राइट. आराम से पकड़ लेते. तो अब यहाँ पर ये डिस्टेंस कवर करना है, तो ये हम रिलेटिव वेलोसिटी के इससे करेंगे. तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू जब टी में फाइंड करूँगा तो उसको हम ऐसे लिखते हैं VPT, तो हो जाएगा 10 - 8, तो 2 किलोमीटर पर आवर. मतलब अगर मैं थीफ यहाँ पर रुक जाए तो पुलिस उसकी तरफ कितनी स्पीड से चल रहा है, तो 2 किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ पर टाइम आएगा 100, डिस्टेंस अपॉन टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, राइट, टाइम. सो डिस्टेंस क्या है, 100 मीटर, वेलोसिटी 2, इसको मैं किससे करूँगा, 5/18 से, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है ना. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो टाइम आएगा वो आएगा आपके पास
3 मिनट। यहाँ पर जो आएगा टाइम ये सेकेंड में आएगा, उसको जब आप चेंज करें जैसे जैसे देख लीजिए यहाँ पर 2 9 ये 20 हो गया, तो 20 इंटू 9 इज़ 180 सेकेंड्स, तो 3 मिनट। ठीक है। 13th इन टू ट्रायंगल्स द रेशियो ऑफ द एरियाज। देखिए पहले तो एरिया क्या होता है, कोई एक ट्रायंगल है, ये बेस ये हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, रेशियो इज एरिया, तो एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इज 1/2 इंटू B1 इंटू H1 अपॉन 1/2 इंटू B2 इंटू H2 इक्वल्स टू 4/3 एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट इज H1 अपॉन H2 इज 3/4। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर बेसिस। दोनों को आप डायरेक्टली डिवाइड कर दीजिए या मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर जो B1 अपॉन B2 आ जाएगा वो 16/9 आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन। 14th इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 12%। यहाँ पर डबल करना है 12% एनुअल यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में बहुत ही इजी फॉर्मूला है हमारा, जो इंटरेस्ट आता है एक्स की वैल्यू P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, जहाँ पर P हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, N हमारा नंबर ऑफ ईयर्स में जो नंबर ऑफ ईयर्स हो गया, एंड R रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो यहाँ पर बोला है सम ऑफ मनी गेट्स डबल, मतलब जो हमारा इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ हो जाता है, तभी तो जो टोटल मनी आएगा वो हो जाएगा P प्लस एक्स, तो 2P हो जाएगा, राइट। तो अब इस फॉर्मूले में हम डालते हैं, तो x की वैल्यू P रख दी, यहाँ पर P इंटू एन की वैल्यू में फाइंड करनी है, R की वैल्यू 12 दे रखी है अपॉन 100, तो P कट कर दीजिए, तो n की वैल्यू आ जाएगी 8 ईयर्स एंड 4 मंथ। सेम क्वेश्चन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए दे दे तो उसके लिए फॉर्मूला अलग लगेगा, तो वो आप फॉर्मूला देख लीजिए। नाउ हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ क्लॉक कोइंसाइड इन अ डे। इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। अगर किसी को आता है तो बहुत ही जल्दी चुटकी में कर लेगा, नहीं तो फंस भी सकता है ये। ठीक है, तो पहले हम एक क्लॉक बना लेते हैं सिंपल सा। ठीक है, कुछ तो ऐसा होता है क्लॉक, राइट। यहाँ पर 12 होता है, 1 2, ये काउंटिंग का क्वेश्चन है, अगर इसके लिए कोई 30 मार खानी चीज़ नहीं चाहिए, इट्स जस्ट अ काउंटिंग। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 12, राइट। सो सबसे पहले वो 12 पे कोइंसाइड होता है, देन व्हेन द मिनट हैंड विल टेक अ 1 राउंड, देन एट दैट टाइम आवर हैंड विल बी एट A। सो जब वो 1 पे आएगा एंड मिनट हैंड विल बी एट 12, सो वो वापस कोइंसाइड कब होगा, इसके बीच में 1 and 2 के बीच में। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये, थर्ड यहाँ पर होगा, फोर्थ यहाँ पर होगा, फिफ्थ यहाँ पर होगा, सिक्स्थ यहाँ पर होगा, सेवन्थ यहाँ पर होगा, एट्थ यहाँ पर, नाइन्थ यहाँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्या हो जाएगा, फिर से हम देखते हैं। फर्स्ट 12 पे हो गया, जब सेकेंड टाइम वो करेगा तो वो 1 and 2 के बीच में आएगा, जब 1 से 2 के बीच में, राइट। फिर 2 से 3 के बीच में, फिर 3 बजेंगे तब ये घड़ी ऐसे होगी कुछ तो, फिर वो 3 से 4 के बीच में आएगा, फिर 4 से 5 के बीच में, 5 से 6 के बीच में, 5 से 6 के बीच में वो जब घड़ी कुछ तो ऐसे होगी, राइट। जब ये 6th पर आ जाएगा और ये 12 पे रहेगा तो 6:30 बजेंगे, तो कुछ यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, एंड 11th के बाद, इसके बाद जब आप 11 काउंट करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जब वापस 11 से 12 पे वो यहाँ पर आ जाएगा, तब आपका एक दिन पूरा हो जाएगा। तो टोटल काउंट यहाँ पर 11 लेते हैं, ना कि 12। सिमिलरली पूरे दिन में ये 11 + 11 22 हो जाएगा। ठीक है, तो द आंसर विल बी दिस। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नाउ हेयर, ये यहाँ से 2 मार्क्स के स्टार्ट हो जाते हैं।